Okay students, so now we are going to start our chapter 12. In this chapter 12 we have already done our 12.1, and in 12.1 I explained all the concept related to perimeter and area of the circle. And now in this 12.2 there is some more parts which we are going to discuss for this 12.2. So let's start for this one. First of all, this is a circle and this is a center point of the circle. Okay, circle, and this is the center point of circle. From center to join to circle. So what we call this? Radius. Yes, we call it radius. Okay, and then again if you join this center to other part of the circle, then again this is called AB radius. And this is also radius, this is also radius. Okay, and the area between these two radius, and this is known as arc. Okay, this part is known as arc. Okay, so this is your arc. Okay, or you simply also can call as minor arc also, or simply arc also. Both are the same thing. Okay, arc or minor arc both are the same thing. No difference is there. If in the question it is written arc, then it is also the same thing. Minor is also same thing. So the area between these two radius and this minor arc means this one. This is known as sector. ठीक है, इतने से पार्ट्स को this whole is known as a sector, or you can also say minor sector. ठीक है, sector or minor sector both are the same things. No difference is there. Sector you can say or minor sector. ठीक है, no specific word can be added other than this minor. ठीक है, okay. Now for this is sector. Okay, now I am taking another example. Okay, this part and rest of the part जो आपके पास बच गया सर्कल का, ठीक है, this rest of the part is known as major sector. Clear? ठीक है, this rest of the part is major sector, and the area between these two radius and minor arc is known as sector or minor sector. Clear? And the same way this arc, ठीक है, this arc जो आपके बाहर वाली है, this is known as major arc. इसको आप major arc करके बोलते हैं. ठीक है, जो छोटी वाली आर्क है, छोटा मतलब माइनर, ऐसे याद रख लो, माइनर मीन्स छोटा. ठीक है, माइनर आर्क दिस वन, मेजर आर्क बिग वन. ठीक है, सेक्टर माइनर ये है तो मेजर उसका ऑपोजिट हो जाएगा. क्लियर? ये सब क्लियर हो गया? क्योंकि ये अगर तुम्हें क्लियर होगा तभी 12.3 भी क्लियर होने वाली है, अदरवाइज मुश्किल है वो बहुत आपके लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग अगेन, दिस इज द सेंटर. If I join this point and this point, ठीक है, and one line to this also. ठीक है, और इस लाइन को क्या बोलते हैं पता है किसी को? This line is known as chord. नहीं पता तो बता देता हूँ. This line is chord. ये जो लाइन आती है इस लाइन को आप chord बोलते हैं. Chord AB is chord. ठीक है, AB is your chord. So the area under this chord, जो इस कोड के अंदर वाला एरिया है ना, ये दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट और सिंपली सेगमेंट. ठीक है, माइनर सेगमेंट, और यू कैन आल्सो से इट एज सेगमेंट. ठीक है, माइनर सेगमेंट और सेगमेंट ऑनली. ठीक है, जो ये आपका जो नीचे कोड के नीचे वाला एरिया है, दैट एरिया इज कंसिडर एज सेगमेंट और माइनर सेगमेंट. ठीक है, ओके. द रेस्ट ऑफ द पार्ट, ये जो सर्कल का बाकी हिस्सा जो भी बच गया, ये सारा मेजर. ठीक है, ऑल दिस इज अंडर मेजर सेक्टर. ठीक है, मेजर सेक्टर इसको बोलते हैं हम, और मेजर सेक्टर में मेजर वर्ड लिखा होगा, ये मैं बता देता हूँ. ठीक है, मेजर सेक्टर के लिए मेजर डेफिनेटली वर्ड लिखा होगा, बट माइनर के लिए इट मे और मे नॉट. ठीक है, क्लियर है? माइनर सेक्टर के लिए वर्ड लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, पर मेजर के लिए जरूर लिखा होगा. तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि मेजर
का एरिया फाइंड करना है कि आपने माइनर का, सॉरी बट ये मेजर सेगमेंट है, दिस इज मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये आपका इसमें क्या है कि इसका आपको एरिया डेफिनेटली वो बोलेगा कि मेजर का पता करना है, माइनर का पता करना है, बट माइनर वाले में लिखा भी हो सकता है माइनर वर्ड और नहीं भी लिखा हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ देयर आर सम फॉर्मूलाज व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस वन। सो व्हाट आर दोस फॉर्मूलाज? The first formula which we will use in this exercise, that is area of minor sector or simply sector। मैं बार बार लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनर मतलब कंपल्शन नहीं है कि माइनर वर्ड लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और सिंपल सेक्टर, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, ठीक है। वेयर थीटा जो आपको दिख रहा है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन टू रेडियस, ठीक है। जैसे ये सर्कल है, दिस इज द सेंटर, तो ये थीटा होता है आपका, क्लियर है। द रेडियस, द एंगल बिटवीन टू रेडियस, दो रेडियस के बीच वाला एंगल जो है दैट इज योर थीटा, ओके। ध्यान रखना ये थीटा कौन सा मैंने बोला। नेक्स्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर आपने मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, देन यू कैन सिंपली राइट 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर मेजर सेक्टर। थर्ड वन, एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर आपने एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, देन उसके लिए आप सेगमेंट या माइनर सेगमेंट एक ही बात है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। ओके, फोर्थ वन, दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है, then area of circle minus area of minor segment, ठीक है। अगर आपने मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये आपके पास, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अगर आपने माइनर आर्क की लेंथ पता करनी है, फॉर दैट फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एंड द सिक्स्थ वन, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। अगर आपने मेजर आर्क की लेंथ पता करनी है, देन यू विल अप्लाई फॉर्मूला 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। एंड सेवंथ वन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। वैसे तो ये फॉर्मूला की जरूरत है नहीं है, बट मैं फिर भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब होता है जहाँ पे थीटा आपका 90 डिग्री होता है, उसको क्वाड्रेंट बोल देते हैं। फिर जहाँ पे थीटा 90 हो जाता है ना, उसको क्वाड्रेंट वर्ड यूज कर लेते हैं। तो आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई इशू भी नहीं है। थीटा इक्वल टू 90 होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये देखो, आप ये फॉर्मूला कैसे बना, बड़ा इजी है। से क्वाड्रेंट का एरिया पता करना है, तो थीटा अपना भर दो सेक्टर में। यहाँ पे 90/360 क्या होता है, 1/4 ही तो होता है, ठीक है। तो यही चीज तुम्हारे पास आ जाएगी। तो करना है याद, तो ठीक है लिख लो इसको, तो अच्छी, नहीं तो आप ये भी लगा सकते हो। बट ये याद रखना कि इन द केस ऑफ क्वाड्रेंट द थीटा विल ऑलवेज बी 90 डिग्री, चाहे गिवन है चाहे नहीं गिवन, ठीक है। थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग दैट यू विल यूज, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो आपने अप्लाई करना है फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना है,
अगर आपका थीटा क्या है 60 डिग्री है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो 1/3/4r², ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एक और है हमारे पास, अगर थीटा आपके पास है 90 डिग्री तो आप लगा सकते हो 1/2r², ठीक है। और अगर आपके पास आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, थीटा क्या हमारे पास एक्सेप्ट 60 और 90 एनी थीटा, ठीक है। तो उस केस में आप फॉर्मूला लगाते हो 1/2r² साइन थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं जो आप इन 12.2 एंड 12.3 में अप्लाई करोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन आपको गिवन है, फर्स्ट वन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। उसने को बोल दिया खुद ही कि आपने सेक्टर का एरिया पता करना है ऑफ सर्कल, इस सर्कल का विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस गिवन है आप। तो स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, जब भी बेटे ये सम्स शुरू करने ना हमेशा अपने क्वेश्चन में लिख लो कि आपको क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो जैसे हमें क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, मींस मुझे रेडियस गिवन है, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड द थीटा एंगल दैट इज 60 डिग्री। तो फॉर्मूला इज एरिया ऑफ सेक्टर that is equal to theta upon 360 into pi r²। So the value of theta is, theta कितना देखो हमारे पास 60 upon 360 into pi is 22/7 and into r, your r is 6 into 6। So now just simplify it, 0 cancel by 6 से 6 भी कैंसिल हो गया आपका, तो आपका आ गया 6 to the 12 13 132/7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस विल बी द एरिया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इफ यू नो द फॉर्मूला जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कैसे लगाना है क्वेश्चन में। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका ऐसे ही है। इन द सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। देखो अब उसने वर्ड यूज कर लिया क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट के लिए आप 1/4 पाई r² लगा सकते हैं, बट हु सर्कमफ्रेंस इज 22 गिवन है। आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है, पर मुझे क्या चाहिए एरिया निकालने के लिए, रेडियस चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के वहां से क्या फाइंड करोगे, रेडियस आप फाइंड करोगे, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके, यानी आप लिखेंगे इसमें कि 2 पाई r इज इक्वल टू, जो आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है 22, तो वहां से पहले आप अपना r निकाल लोगे, ठीक है। एंड आफ्टर फाइंडिंग r यू कैन अप्लाई योर फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, ठीक है। ये चीज है। ओके, हैव यू नोटिस द फॉर्मूला? फॉर्मूला नोटिस कर लीजिए। तो यही चाहिए हमें अगली एक्सरसाइज में, तो बहुत ज्यादा की जरूरत पड़ने वाली है आपको। ओके, तो नाउ नेक्स्ट जो है हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिफरेंट है मैं वो करवा रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा था लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। लेंथ का मतलब हो गया रेडियस। जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ध्यान रखना ये लेंथ ऑफ मिनट हैंड को कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं ये आर्क है, आर्क नहीं है, क्योंकि मिनट हैंड जब पूरा एक राउंड लगाती है तो वे क्या बनाती है, एक सर्कल बनाती है कंप्लीट। जब मिनट हैंड ने पूरा एक राउंड लगाना तो सर्कल बनाती है। तो डेफिनेटली जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है या आर हैंड कोई भी है वो हमेशा रेडियस होती है, ठीक है। तो रेडियस आपको गिवन है दैट इज 14 एंड फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब मुझे सिर्फ उसने टाइम दिया है, पर अगर मैंने एरिया स्वेप्ट आउट फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या चाहिए, हमेशा थीटा चाहिए ना मुझे, क्योंकि एक तरीके से वो सेक्टर तो बना रहे हैं। जो आपकी मिनट हैंड है वो 5 मिनट में घूमी है, 5 मिनट में जहाँ पे भी थी वहां से 5 मिनट ऐसे घूमी है। तो थोड़ा सोच के देखो, इमेजिनेशन करो, वो एक तरीके से सेक्टर की शेप ही बना रही है वहां पे, ठीक है। तो सेक्टर का अगर आपने क्या फाइंड करना है, एरिया, तो सेक्टर का जब भी एरिया फाइंड करना है तो आपको दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी?
एक तो रेडियस और दूसरा थीटा, ये दोनों हमें चाहिए, ठीक है। बट आप क्वेश्चन में देखो आपको सिर्फ क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, आपको थीटा नहीं गिवन है। सो फॉर दैट वन वी विल फाइंड द थीटा, ठीक है। आप थीटा फाइंड करोगे, थीटा कैसे फाइंड करोगे, आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको इतना पता है कि जब मिनट हैंड पूरा एक राउंड लगाती है, एक राउंड पूरा लगाने में उसको कितने मिनट्स लगते हैं, 60 मिनट्स लगते हैं। एक पूरा राउंड लगाने में उसको 60 मिनट लगते हैं, और 60 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बना लेती है, टोटल 360 का बना लेती है, ठीक है। सो यू कैन राइट हियर द एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट में उसने जो एंगल बनाया है वो कितना बनाया है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। सो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना बना लेगी, फिर वो क्या करोगे, डिवाइड ही करोगे, कितना आ गया, 60 डिग्री का एंगल उसने बनाया मिनट हैंड ने। 1 मिनट जब वो चलती है तो हमेशा 60 डिग्री का एंगल उसका बन जाता है, ठीक है। और हमसे उसने कितने मिनट के लिए पूछा है, 5 मिनट्स के लिए पूछा है, ठीक है ना। मिनट हैंड इन 5 मिनट, वो आपसे 5 मिनट से पूछ रहे कितना एंगल बनाएगी, तो ऑब्वियसली अगर 1 मिनट में 60 बना तो 5 में क्या हो जाएगा, फिर 30 डिग्री। और जी आपके पास थीटा आ गया, ठीक है, थीटा आपके पास है, आर आपके पास है, तो यू कैन फाइंड द एरिया, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हाँ, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सेगमेंट फाइंड करना है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। एक सेगमेंट का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा आपको कि सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेगमेंट फाइंड करने के लिए बेटा क्वेश्चन में आपको मैंने बोला था कि टू फाइंड द सेगमेंट वी नीड सेक्टर एंड ट्रायंगल। ये फाइंड करने ही करने आपको, ये दिमाग में बैठा लो। क्वेश्चन में चाहे उसने सेगमेंट अगर वर्ड लिख दिया है ना कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो इसका मतलब ये कि आपको सेक्टर पता करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में आप चेक करो मैंने क्या लिखवा है, एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है। तो इट मींस आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, मुझे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के आपके पास a chord of circle of radius 10 centimeter, of radius 10 centimeter आपको given है, and the angle is right angle, जो क्वेश्चन में लिखा है angle is right angle 90 थीटा उसने बोला है। find the area of corresponding major segment and major sector, दो बातें पूछी है उसने, major segment and major sector। तो फर्स्ट आप इसमें फाइंड करोगे सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, जो फर्स्ट पार्ट में मैं सॉल्व करता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई इज 22/7। अच्छा ये मैंने पहले ही बोला तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो मैंने ये बात बोली थी आपसे कि पाई इज 22/7 इफ इट इज नॉट सेट द क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर नहीं लिखा कुछ भी तो 22/7 ही लेना है, बट इफ इट इज मेंशन कि क्या लेना है तो फिर वही लेना है आपने, चाहे 3.14 बोला या 22/7 बोला और एनी एल्स वैल्यू, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर नहीं मेंशन है तो 22/7 ही लेनी है आपको, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर, योर आर इज 10 सेंटीमीटर इंटू 10, आर स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लो, नीचे यहाँ 4 आ गया तो यहाँ पे 2 एंड हियर इज 11, देन 2 से आप इसी कैंसिलेशन करोगे तो 5, कितना आ गया फिर आपके पास ये 550 अपॉन 7 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बना दो, मीटर तो मीटर स्क्वायर, तो इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के मैंने देखो यहाँ आपको 3 फॉर्मूले दिए हैं, एक 60 है तो ये फॉर्मूला लगा दो, 90 डिग्री है तो ये लगा दो, एंड एनी थीटा, अगर कोई और थीटा इन दोनों के अलावा कोई और थीटा है तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो वी विल अप्लाई हियर दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो 1/2 इंटू आर स्क्वायर, 1/2 इंटू द वैल्यू ऑफ आर इज 10,
ठीक है, सिंप्लीफाइड सो इट बिकम 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ यू विल राइट हियर Sir, you find क्वेश्चन में गिवन 3.14 बस, ठीक है. फिर आप यहाँ 3.14 के हिसाब से सॉल्व कर लो, ठीक है. इफ इट इज गिवन दैट पाई इज 3.14 तो आप 3.14, ठीक है, कोई इशू नहीं है, डेसिमल्स में आ जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. तो एरिया ऑफ, अब आपने क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल हो गया. देन एरिया ऑफ आपने क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट. तो माइनर सेगमेंट में आपके पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. और ये फ्रैक्शन बन गया आपका. तो फ्रैक्शन आप हमेशा जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जैसे किया करते हैं. तो 550 माइनस 350 अपॉन 7 एंड डिवाइड इट बिकम 200 अपॉन 7, ठीक है. तो ये आपका एरिया है. क्लियर है कि नहीं? ओके. नेक्स्ट इज, उतारना है आप लोगों ने. द नेक्स्ट वन इज, इसका सेकंड पार्ट उसने आपसे क्या पूछा, देखो सेकंड पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सॉरी मेजर सेक्टर पूछा उसने आपसे, ठीक है. तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. तो मेजर सेक्टर का अगर आपने एरिया फाइंड करना, उसका फॉर्मूला दिया था आपको 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय r. सो 360 माइनस थीटा इज 90 अपॉन 360 इंटू पाई के 0.314 इंटू आर आपका आई थिंक 10, ठीक है. तो 360 माइनस 90 बिकम 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10. सो ये आप डेसिमल डाके जैसे आप अपना 100 लगा के वो लगा सकते हो. एंड इट इज कैंसिल 3 9 27, बट 3 से 9 से करो, 9 से 27, 9 4 36, ठीक है. ओके. तो ये 2 zeros कैंसिल आपकी, 4 बच गया, 4 से कटिंग करो, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 7 14. अब इसको आप इसका आंसर कितना है 157 अपॉन 2. आप इसमें भी जोड़ सकते हो आंसर, ठीक है. ये आपका आंसर, इसमें भी आप लीव कर सकते हो. बट एक बात और सुन लो, अगर आपका एमसीक्यू 3 मल्टीप्लाई, यस 3 से भी आपको मल्टीप्लाई करना है इसको. तो 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे बिकम 471 कौन, ठीक है. अच्छा, इसमें एक बात सुनो, आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो अपना आंसर, ठीक है. बट जो आपको अगर एमसीक्यूज में आता है बट वहाँ पे आपका फ्रैक्शन ही नहीं गिवन है, तो ऑब्वियस है फिर आपको इसको डिवाइड करना, ठीक है. तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता. ओके. नाउ अब डिफरेंट टाइप जो इसमें क्वेश्चन की है जो समझाने वाली है. नेक्स्ट इज ऑन क्वेश्चन नंबर आपका है 9th, ठीक है. 9 क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ दिस एक्सरसाइज. बाकी सारी टाइप पुरानी है, यानी इन्हीं से रिलेटेड है. जो 9 क्वेश्चन है ये एक डिफरेंट टाइप का है, बाकी सारे क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं आपके सारे आसपास है. इसी नहीं जो नेक्स्ट ये 13 क्वेश्चन है सब में यही फॉर्मूले लग रहे हैं और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो हमने यहाँ पे की, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, एंड इट्स इंपॉर्टेंट वन आंसर. क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है आपसे कि एक ब्रूच है जो कि सिल्वर वायर से बना हुआ है, ठीक है, जिसका डायमीटर गिवन है आपको. सो डायमीटर इज 35 millimeter and but we will find the radius, so 35.2 millimeter, ठीक है. Okay. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. आप समझने वाली बात है यहाँ पे कि उसने बोला 10 इक्वल सेक्टर्स बोला है. इट मींस थीटा हमें नहीं गिवन है. सेक्टर का अगर मैंने एरिया फाइंड करा तो थीटा तो चाहिए मुझे. तो फॉर फाइंडिंग दैट थीटा, इन दैट केस जब आपके वो पार्ट्स बनाएगा ना हमेशा रेडियस
उस केस में थीटा कैसे फाइंड करना है कि यू विल डिवाइड 360 बाय नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हमारे पास 10, ठीक है। जब भी थीटा ऐसे करना तो हमेशा 360 किससे डिवाइड करना, अपने नंबर ऑफ पार्ट्स से डिवाइड करना। नंबर ऑफ पार्ट्स ने बोला है 10 पार्ट्स बन 10 इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं, सो यू विल डिवाइड इट बाय 10। सो ये कैंसिल हो गया आपका, थीटा कितना आ गया हमारे पास 36 डिग्री। तो थीटा आ गया आपके पास। नाउ यू कैन फाइंड द एरिया, ठीक है, जो कि पहला पार्ट आपका है भी कि फाइंड द, सॉरी पहला पार्ट है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर आर्क। तो टोटल लेंथ दैट इज इक्वल टू, नाउ लिसन केयरफुली, कैसे फाइंड करनी है। ये सेंटर है, इसमें 5 डायमीटर, इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो जो वायर है बेटे, वायर कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है, जो उसको बनाया उसने ब्रूच बनाया है, ऑब्वियस वायर यहाँ पे यूज हो रही है ना, इतनी सी एरिया में वायर भी यूज हो रही है। और वायर कहाँ पे यूज हो रही है, ये जो स्ट्रेट लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, इन स्ट्रेट लाइंस में भी वायर अपनी अप्लाई हो रही है, ये जो 5 डायमीटर सबके बनाए, ठीक है। तो इनमें आपने अप्लाई करना है बार, इट मींस आप क्या लगाएंगे इसमें 2 पाई आर, ठीक है। सो 2 पाई आर प्लस आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 5d, ठीक है। 2 पाई आर मींस दिस इज द लेंथ, ये वाली जो लेंथ अगर फाइंड करनी है इसके लिए आप क्या लगाओगे फॉर्मूला 2 पाई आर, क्योंकि ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हो आप, सरकमफ्रेंस, ठीक है, प्लस 5d, d मींस डायमीटर, डायमीटर कितने है मेरे पास 5 है, तो इसलिए 5d लगा दूंगा, ठीक है। मे बी आपको एग्जाम में वो 10d बोल दे वहां पे कि 10 डायमीटर्स बन रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना अल्टर हो सकता है, ये नहीं कि सेम एनसीईआरटी और छाप देना उन्होंने, बिल्कुल आ गया सेम तो तुम्हारी किस्मत है, नहीं तो थोड़ा बहुत अल्टर वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी। अब बस में वैल्यूज फिट कर दो, 2 × 22, उसने पाई की वैल्यू नहीं मेंशन है तो 22/7 एंड r इज 35/2 प्लस 5 × d एंड द डायमीटर इज 35। सो नाउ यू कैन सॉल्व, इट बिकम 5, इट बिकम 2 कैंसिल, कितना आ गया 5 × 10 11 प्लस, ठीक है, 175 आएगा, yes, ओके। नाउ ऐड बोथ दिस वैल्यूज, 5 8 2, दिस बिकम 285 मिलीमीटर, ठीक है। इतनी लेंथ होगी जो हम उसको बनाने में यूज करेंगे। एंड सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा, देखो आपसे, देखो भाई सेम बात, एरिया ऑफ ईच सेक्टर उसने वर्ड यूज किया है। एरिया के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि क्या लगाना है आपने, दैट इज थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज कितना, थीटा हमारे पास 36 डिग्री, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटे, नंबर ऑफ पार्ट्स जब भी फाइंड कर गिवन है और एंगल फाइंड करना है तो हमेशा 360 को नंबर ऑफ पार्ट्स से डिवाइड करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पता कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 10th भी देखो यही है सेम, क्वेश्चन नंबर 13th में भी यही है आपके पास, 13 में भी आपके पास पार्ट्स गिवन है उससे डिवाइड करना है आपने, ठीक है। सो 36 अपॉन 360 into pi is 22/7, r is 35/2 into 35/, ठीक है। सो यू कैन कैंसिल इट, इज 10, यहाँ पे 11, ये 5, और भी कैंसिलेशन हो रही है, यस 5 2 × 10 एंड 5 7 × 35, और तो कोई कटिंग नहीं हो रही है। सो यू कैन इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 55 into 7 385 upon 2 to the 4, ठीक है। So this will be the area of the each sector, clear students। तो इस तरीके से आप जो है, यानी अब ये जितनी टाइप्स मैंने करवाई है यहाँ पे आपको सारी इन्हीं क्वेश्चन में घूमती फिरेंगी आपकी, ठीक है। ये 12.2 के सारे क्वेश्चन इन्हीं टाइप्स में ही है, क्लियर है, ठीक है। ये इसमें आपके पास, ये ध्यान रखना आप इस क्वेश्चन, ओके।